So welcome to this tutorial, and in this video I am going to do Fibonacci series again because some of the user were having problem in understanding the previous video. So in this video I have used the logic behind whatever the logic is that I have explained through the animation, so I hope you'll understand it. Okay, so basically what basically the Fibonacci series is. Suppose if the and if the user want that he wants 7 Fibonacci series, what if the user want 7 Fibonacci series, then the output should come 0, 1, 1, 2, 3, 5, right? So how you got this number? Let me check. Okay, sorry, this is only 6. Yeah, if the seventh you want, then it should come 8. Okay, I'll show you how. Now see the logic behind this. Suppose there is a number called 0, right? You see the animation. The first number is 0. Always the first number is 0. The second number is 1. Okay, this is permanent. Okay, now addition of these two will give me a third number. So what will be the addition of these two? Then what will be the addition of these two? Okay, wait a minute. Okay, so what will be the addition of 0 plus 1? It will be 2, right? So let me check. Okay, sorry, 0 plus 1 is 1. Did we get the answer? Yeah. Now 1 plus 1 is 1 plus 1 is 1 plus 1 is 2, right? So we got the 2. Now 2 plus 1, 2 plus 1 is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 5 is 13. 13 plus 8 is 21. So like this, to get this 3 number, we are adding two previous number. To get this 5, we are getting the adding the two before two terms. Okay, right? 21 चाहिए तो हमें 13 और 8 को ऐड करना है मतलब ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे then like this the Fibonacci series is followed. Okay, so I hope you understood the logic behind what basically Fibonacci series is. Now coming to this part, which was creating a very much problem in everyone. I don't know why, but let me solve it. It's my duty. Now, do not ever ratify. Do not ever ratify the code. If you will ratify the code, what will happen? Today you'll be able to code, but after few days, then you'll forget. Okay, again you have to see your notes. So always clear your concept. It is a very good habit. One of my user told me that he didn't learn Fibonacci series. I was very मतलब, happy that yeah, he witnessed that he was not able to solve it. So okay, let's see now. Now suppose the first thing you have to keep in mind that ni मतलब first term I have taken n1 as a first term, so n1 is my first term is 0 and my second term is 1. Is this clear? इतना clear है कि नहीं clear है? My first term is 0 and my second term is 1, and I have to find the number of terms till 7. I am taking as a number as a 7. Okay, to make you understand, now. See, this is the code which we already seen in the previous slide, matlab in the previous video we have seen. Okay, so this was the proper code I which you didn't understand. See, term is here. Term will be replaced by 7. Okay, just remember that. I'll show you how. Now, first of all, blindly you have to print the first two number. You know that first two number is 0 and 1. So first step in your program will be, before writing this for loop also, for loop के ऊपर भी तुम्हारा क्या काम होगा? You have to print these two number. You have to print these two number as it is. Okay, you have to print 0 and 1. इतना हो गया? इतना हो गया क्या? Okay, okay, so इतना हो गया. Now यहाँ पे आई मैं टू क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? वाई एम स्टार्टिंग द ईयर? आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैं यहाँ पे टू क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? वाई नॉट 0 and 1? बिकॉज दिस फर्स्ट दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस सेकेंड टर्म आई हैव ऑलरेडी प्रिंटेड, राइट? दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट बाय सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड के बाद का टर्म, राइट? बिकॉज यहाँ पे 0 और 1 तो मैंने प्रिंट ऑलरेडी कर चुका है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इनटू द कंसिडरेशन. इज दिस क्लियर? नाउ वेट अ मिनट. या नाउ सी. Here the I value is, what is the value of I? I value is 2. Okay. See, अगर यहाँ पे मैं equal to कर देता, यहाँ पे मैं अगर equal to करता ना, then I would have written it 3. बट यहाँ पे equal to नहीं है, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ. Okay, I hope you understood. Previous video में कई बार बताया मैंने. तो यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या है अभी? I की वैल्यू starting from 2, that's why I value is 2. Now see, टेम्प अभी इस लूप में आएगा, वो टू को चेक करेगा. टू इज ग्रेटर देन 7 यहाँ, क्योंकि टर्म यहाँ पे 7, याद रखना ये सम टर्म हमारा हमने 7 लिया. क्यों? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है, राइट? तो is 2 less than 7? Yes, it is less than 7. Now what it will do? It will n1 plus n2. What it will do? N1 plus n2. What is n1 plus n2? 0 plus 1, right?
0 plus 1 is n1 is 0 and n2 is 1, तो 0 plus 1 is 1. So now see, so it will assign to a number called temp. तो temp में मैंने वन नंबर स्टोर कर दिया. कैसे आया वन? 0 plus 1 करने से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है. नाउ सेकेंड स्टेप जो था, सेकेंड लाइन मेरी थी क्या थी? मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? कर रहा हूँ टेम्प की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? टेम्प की वैल्यू को प्रिंट. तो टेम्प की वैल्यू क्या है? वन है. टेम्प की वैल्यू क्या है? वन है. तो क्या यहाँ पे मैंने वन प्रिंट कर दिया? क्या मैंने वन प्रिंट कर दिया? जीरो और वन तो पहले से ही थे. वन क्या मैंने प्रिंट कर दिया? देखो, जीरो प्लस वन वन, राइट. अभी तक तो मेरा लूप सही है. नाउ कम टू दिस लाइन. N2 की वैल्यू अभी क्या चल रही है? N2 की वैल्यू चल रही है वन. N2 की वैल्यू क्या चल रही है? वन. तो यहाँ ऊपर देखो, N2 की वैल्यू क्या चल रही है? वन. तो वन कहाँ पे असाइन हो जाएगा? N1 को असाइन हो जाएगा. किसको हो जाएगा असाइन? N1 को. तो सी, N1 इज असाइंड बाय वन. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? N1 में जो वैल्यू थी वो मतलब मैंने वन को असाइन कर दिया, राइट. जो N2 की वैल्यू तो मैंने वन को. अब थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन है टेम्प की जो वैल्यू है उसको मुझे N2 को देना है. टेम्प की वैल्यू क्या है? टेम्प की वैल्यू वन है, तो N2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी, राइट. सो सी, N2 वैल्यू इज ऑल्सो वन. इज दिस क्लियर? पहला इटरेशन क्लियर है. अब देखो, ये जब एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल अगेन प्लस प्लस आई. क्या करेगा वो? प्लस प्लस आई करेगा. तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? आई वैल्यू विल बी थ्री. नाउ अगेन सी, थ्री इज लेस देन सेवन. यहाँ पे तो थ्री इज लेस देन सेवन. या इट इज लेस देन. अगेन इट विल एग्जीक्यूट दीज लाइंस ऑफ कोड. सी, अभी क्या? अभी देखो, अभी इसको भूल जाओ. क्यों? क्योंकि n1 इज रिप्लेस बाय वन एंड n2 इज रिप्लेस बाय वन. ओके, अभी इस वाले से हमें कुछ नहीं लेना देना, ये भूल जाओ. अभी अभी जो हमारी n1 और n2 की वैल्यू है, दिस जो मैं शो कर रहा हूँ वो है. अभी देखो, n2 प्लस n1, यहाँ पे n1 की वैल्यू वन चल रही है, n2 की वैल्यू वन चल रही है, तो वन प्लस वन क्या होगा? वन प्लस वन होगा टू. तो टू किसको असाइन हो जाएगा? टू मेरा असाइन हो जाएगा टेम्प वेरिएबल को. किसको असाइन हो जाएगा? टेम्प को. तो देखो, यहाँ पे मैंने टू असाइन कर दिया. यहाँ पे मैंने टेम्प को टू असाइन कर दिया. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है? प्रिंट एफ. किसको प्रिंट कर रहा है वो? टेम्प वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है. किसको वेरिएबल कर रहा है? टेम्प वेरिएबल. तो अभी टेम्प की वैल्यू क्या है? टेम्प वैल्यू इज टू, सो इट विल प्रिंट टू. सी, यहाँ पे मैंने टू को प्रिंट कर दिया. इज दिस क्लियर? नाउ अगेन सी, अभी n2 की वैल्यू क्या चल रही है? n2 की वैल्यू इज n2 की वैल्यू इज वन, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इसको तो भूल जाना है. n2 की वैल्यू इज वन, तो वन वन विल बी असाइन टू n1. तो सी, अगेन वन विल बी असाइन टू n1. इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड थिंग. व्हाट इज दिस टेम्प वेरिएबल? टेम्प की वैल्यू क्या चली है? टू है. तो अब मेरी टू की वैल्यू जो है वो n2 को असाइन हो जाएगी, राइट. जो टू की वैल्यू है वो मेरी n2 को असाइन हो जाएगी. तो n2 का आंसर क्या आएगा? n2 विल बी टू, राइट. सो इतना क्लियर है. इसके बाद होने के बाद फिर से वो क्या करेगा? प्लस प्लस आई करेगा. मतलब अब थ्री की वैल्यू थी, अब थ्री वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर हो जाएगी. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? नाउ अब देखो, अब फिर से वो इधर आएगा. अब वो फिर से आएगा. अभी n2 की वैल्यू क्या चल रही है? ये तो हमारा खत्म हो गया ना. ये वैल्यू इज रिप्लेस बाय दिस, दैट्स वाई ये वैल्यू, जो ये पहली वाली लाइन थी, अब तो ये नहीं रहे ना. अब तो ये जो मेन वैल्यू, इसको लेके चलेंगे ना हम, ये सेकंड रो को लेके चलेंगे ना. ओके. सो ये वाली तो कट हो गई है. अब देखो, टेम्प वैल्यू n2 प्लस n1. n2 की वैल्यू अभी क्या है? टू है. और n1 की वैल्यू क्या है? टू प्लस वन क्या हो जाएगा? टू प्लस वन क्या हो जाएगा? इन दोनों को देखो, टू प्लस वन क्या हो जाएगा? थ्री. तो टेम्प को मैं अभी क्या असाइन कर दूंगा? थ्री कर दूंगा. तो सी, यहाँ पे मैंने थ्री असाइन कर दिया टेम्प को. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके. नाउ उसके बाद प्रिंट एफ. अभी क्या है? प्रिंट एफ किसको प्रिंट करेगा? वो टेम्प वेरिएबल को प्रिंट करेगा. तो टेम्प वेरिएबल की वैल्यू क्या है? थ्री है. तो ये थ्री है, यहाँ पे थ्री प्रिंट हो जाएगा. सी, यहाँ पे थ्री प्रिंट हो गया. इज दिस क्लियर? नाउ अगेन गो फॉर इट. नाउ अभी क्या है? प्रिंट एफ हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया. अब बचा n2. n2 की वैल्यू क्या है? टू है. तो अब टू की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? n1 को असाइन हो जाएगी. तो सी, यहाँ पे टू की वैल्यू n1 को असाइन हो गई. हाँ, हो गई. ओके. नाउ पॉइंटर ऑप्शन. ओके. नाउ टेम्प वैल्यू क्या है? टेम्प वैल्यू इज थ्री. अभी टेम्प वैल्यू मेरी क्या चल रही है? थ्री चल रही है. तो थ्री विल बी असाइन टू n2. क्यों? क्योंकि मेरा जो कोड है वो बोल रहा है कोड. तो सी, नाउ दिस इट विल बी थ्री. अभी थ्री होने के बाद फिर से वो प्लस प्लस आई को इंक्रीमेंट करेगा. प्लस प्लस आई को इंक्रीमेंट करेगा तो वैल्यू ऑफ फोर विल बिकम नाउ फाइव. ओके. अब देखो, फाइव को जब इंक्रीमेंट करेगा तो देखो, यहाँ पे टेम्प फाइव कैसे आया? क्यों? क्योंकि n1 प्लस n2 n1 प्लस n2, n की वैल्यू इस टू चल रही है, और ये क्योंकि अब हमें इन दोनों रो को भूल जाना है.
अब हमें इन दोनों को अब क्योंकि हमें लास्ट रो को देखना है, 3 + 2 = 5, दैट्स व्हाई 5 इज असाइंड टू दिस। नाउ 5 टेम्प की वेरिएबल है, तो टेम्प की वेरिएबल क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंट, ये प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये प्रिंटिंग द नंबर, देखो यहाँ पे इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे 5 भी मेरा प्रिंट हो गया। अब n2 की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, n1 को, तो n2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 को किसको असाइन हो जाएगी, 2 को असाइन हो जाएगी। तो सी, अब 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 को मैंने चेंज करके 3 कर दिया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, तो सेम वे टेम्प वैल्यू, जो टेम्प वैल्यू 5 है वो अब n2 को असाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्प की वैल्यू 5 चल रही थी, तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू जब 5 है तो इट इज असाइनिंग टू n2, तो अब n2 को हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारा लूप चलेगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या होएगा, लास्ट में ऐसे लूप करने के बाद लास्ट में बचेगा मेरा 7। लास्ट में क्या बचेगा, 7। क्या 7 इज ग्रेटर देन टर्म्स? तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो यहीं तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये फॉर लूप पूरा खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Is this clear? Okay. So I hope now you understood what basically this was, basically a dry run. Dry run मैंने इसलिए किया ताकि आपको फिबोनाची सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए. Okay. So let me go and just quickly code this. Okay. So this is what is basically this Fibonacci series, right? So int I, what I'll be requiring? I'll be requiring int I. Then I'll be requiring what I'll be requiring terms, and then I'll be requiring n1 n2. So n1 I'll be assigning it as 0, and n2 I'm going to assign it as 1. Okay, this is the basic scenario. And do I need anything else? Terms, okay, terms, temp, yeah, one more temp variable also I'll be requiring. Okay, temp variable, okay, जिसमें मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, है ना। आई होप सी टर्म्स इज अलग एंड टेम्प इज अलग, ओके ना। सो नाउ printf enter the नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, कितना नंबर ऑफ टर्म्स का तुम्हें फिबोनाची सीरीज चाहिए, ओके। तो स्कैनफ परसेंट डी कॉमा implicit to where I will be storing, I'll be storing to terms, okay, क्योंकि जितना टर्म्स चाहिए उतना मैं टर्म्स में स्टोर कर दूंगा। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो मैंने क्या बोला, कुछ भी लूप रन करने से पहले हमें ये दोनों नंबर को प्रिंट करना ही करना है। क्या करना है, ये दोनों नंबर को हमें प्रिंट करना ही करना है। तो लेट मी प्रिंट दैट, प्रिंट एफ, ओके वेट अ मिनट, या परसेंट डी कहाँ गया, या परसेंट डी एंड वन मोर परसेंट डी, राइट। ओके स्लैश डी के बाद, अच्छा मैं टैब यूज कर रहा हूँ, यू ऑल्सो यूज टैब बिकॉज इट विल लुक नाइस, एंड परसेंट डी। और इसके बाद एक को मैं जीरो के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ और एक को वन के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा एन1 और एन2 को मुझे पहले वैसे के वैसे ही प्रिंट करना है। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डाल दो, प्रिंट एफ फिबोनाची फिबोनाची सीरीज is as follows. Okay, so now see, इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना फॉर लूप रन करूंगा। ये समझ में आया ना, ये तो मैं बस ऐसे के दो का स्टेटमेंट रन किया। नाउ आई रन माई फॉर लूप। तो आई मैं रन करूंगा 2 से, आई इज इक्वल टू 2, देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टर्म्स, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया टर्म्स, देन प्लस प्लस आई। इज दिस क्लियर? नाउ प्लस प्लस आई होने के बाद नाउ टेम्प वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प इज इक्वल टू n1 प्लस n2। इज दिस क्लियर? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ कर रहा हूँ किसको, परसेंट, एक मिनट परसेंट डी, एंड यहाँ पे मेरे को एक और टी चाहिए होगा, स्लैश टी, और यहाँ पे भी मैं स्लैश टी डालता हूँ, ठीक है, बिकॉज सो दैट इट विल लुक नाइस। और इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, टेम्प वेरिएबल को रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एन वन को n2 की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद n2 इज इक्वल टू टेम्प। तो गाइज आई डोंट नो व्हाई यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन दिस। बेसिकली ये जो चीज की है ना मैंने, टेम्प n1 n2, ये स्वैपिंग ऑफ द नंबर्स है। अगर मैं प्रिंटफ को हटा दूं तो ये बेसिकली एक तरह से हम स्वैप कर रहे हैं, एक तरह से हम बेसिकली स्वैपिंग ही कर रहे हैं। ओके सो नाउ ये हो जाएगा। उसके बाद आई होप दिस विल वर्क एज फाइन एज इट वाज। ओके सो आई विल रन द कोड अगेन। what is asking, enter the number of terms. Suppose I want 5 Fibonacci series. So see, Fibonacci series is as follows: 0 1 1 2 3. Okay, if I'll run again, so suppose if I want 10 Fibonacci series, okay, so see, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34. Okay, is this clear? So like this Fibonacci series was covered again and again. I don't think so now you have any doubt, but still if you have, just comment below. Okay, so till then keep learning and keep watching Hack Coding. Jai Hind.